अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल तेलंगाना आंध्र न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम न्यू मॉडल हाई स्कूल पे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर नन्हे बच्चे यहाँ पर ने प्रोजेक्ट बनाए, साइंस एग्जीबिशन मनाया जा रहा है। यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो है प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं कि कितना वक्त लगा है, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे हुनर बच्चों को चाहिए कि जो ऐसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले हर चीज़ में, साइंस एग्जीबिशन नहीं बोलकर नहीं, स्पोर्ट्स में हो या क्विज कॉम्पिटिशन हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो आइए कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं क्या बच्चे क्या-क्या यहाँ पर तैयार कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। बेटे 30 सेकंड के अंदर यहाँ पर मेरे साथ लड़की खड़ी है, उनसे मालूमात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट जो तैयार किए हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं। बेटे आपका नाम बताइए पहले, कौन सी क्लास में है आप? 9th में। आप जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। Artificial intelligence. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is a field of science. वेट भाई एक तो नाज़रीन मेरे साथ यहाँ पे एक मासूम सी लड़की है, उनसे पूछते हैं कि जो ये जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं उसके ताल्लुक से कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं। बेटा आपका नाम बताइए। Aisha Siddiqa. कौन सी क्लास में हैं आप? 9th standard. आप जो प्रोजेक्ट तैयार करें उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दीजिए। Artificial intelligence. It is a field of science concerned with building computers and machines that can learn, reason, and act in such a way that it would normally require human intelligence or involves data whose scale exceeds that human can analyze. Artificial intelligence is the basis for all computer learning and is the feature of all complex decision making. The creation of military boats, self-driving cars, smart home mobile application, and voice recognition is expected in the future of artificial intelligence and is expected to boost the overall economic input rate within the next 4 decades. Overall, artificial intelligence is a boon for the development of society, but people should learn to capture jobs in the same field, and it should be used for the benefit of human race. Development of technology has its both advantages and disadvantages. Uh, the creation of artificial intelligence has reduced the duration of any work. Has reduced the duration of any work. We can save over time and we can utilize it in other. What is the benefit of artificial electronic parts? Yes, it can save over time. We can utilize it in other aspects also. The various equipments, as we have seen just now, has reduced over time. And but it has disadvantages also. It has made human mind somewhat lazier because there is nothing to think about as computer and modern technology is providing everything, means all answers to questions. And that's why we are becoming lazy day by day. And moreover, apart from this, I wanted to say that robots cannot replace teachers because as teachers impart knowledge, education with love and affection by understanding the psychology of students, which robots cannot. So above all, humanity is superior than advancement. Thank you. तो नाज़रीन यहाँ पर हम जो है शुगर इंडस्ट्रीज के पास ठहरे हुए हैं। जो है एक लड़की है जिसका नाम है सुमैया, जो एक जमात की जो तालिबे इल्म है उसके ताल्लुक से मालूमात करने की कोशिश करते हैं। बेटा ये बताइए, आप जो प्रोजेक्ट तैयार करिए शुगर इंडस्ट्री ये क्या सोचकर बना है ये और कितना टाइम लगा है? For showing people how sugar is made. It takes 1 to 2 days. आपको पेरेंट्स कोऑपरेट करे, आपके टीचर्स कोऑपरेट करे प्रोजेक्ट के लिए? My teachers. जी, अब ये बताइए क्या-क्या आप तैयार कर रहे हैं इसके अंदर? ये क्या चीज़ है ये? This is filters and boilers area. Here the sugar will be filtered and get boiled and cut into small pieces. After that, here the crystals will be removed and sugar will stored here. After that, we will pack the sugar and give to customers. देखिए नाज़रीन, बहुत ही एक नई चीज़ दिखने में यहाँ पर जो है शुगर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी अच्छा जो है बच्चों को जो है इंकरेज मिल रहा है। अभी तो जो शुरुआत है और भी आपको लिए चलते हैं, आगे भी लिए चलते हैं कि मालूमात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लड़कियाँ यहाँ पर ठहरे हुए हैं कि जो है ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। बेटे ये प्रोजेक्ट कैसा है मैडम? Environmental protection. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये क्या चीज़ होती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन? The meaning of environmental protection is to save our earth and save our environment, trees. We have to plant trees, save trees, don't cut down the trees. आपका नाम बताइए, व्हाट्स योर नेम? I'm Rilva Zafri. Which class you study? 9. And you?
Saint Maria Will, Afia Fatima. ये तीनों ने जो सेफ प्लांट सेफ लाइफ बनाए हैं, तो और भी लिए चलते हैं आपको, आइए आगे। तो हम यहाँ पर पेपर इंडस्ट्रीज के पास आए हुए हैं। यहाँ पर लड़कियां यहाँ पर पेपर इंडस्ट्रीज बनाए, ये पहली बार देखा जा रहा है पेपर इंडस्ट्रीज का यहाँ बनाया गया है। तो बताइए, नाम बताइए आप पहले। Assalamu alaikum. Myself Sadia Begum. Today we are explaining about paper. आपका नाम बोलिए। Assalamu alaikum. My name is Isra Fatima from 7th standard. My name is Khairunisa from 7th standard. चलिए ये बताइए, पेपर इंडस्ट्रीज जो बनाए हैं आप क्या सोच कर बनाए? अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस होना। Public में awareness होना। बोलिए, एक्सप्लेनेशन। In the first phase, large piece of wood. In the first phase, large piece of wood are cut into small chips with the help of large machines. They can cut lorry load of wood within 30 minutes. पहले यहाँ The पर chips. सेविंग ऑफ देन Saving of loss. Paper cut in the cutting machine. Paper cut in the cutting machine according to the size. According to the size, paper is made into rolls and sheets as well. In these packed and sent to the godowns. This is spreading of the pulp. The liquid of the pulp is the important stage as the weight, length and thickness of the paper is as the stage. The liquid evaporates, drains and evaporate due to heats. तो ये से देखिए कटिंग पेपर का बनाए हुए थे। यहाँ पर भी कुछ लड़कियां बनाए हैं, तो इनसे कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए बेटा, क्या है प्रोजेक्ट उसके बारे में? Photosynthesis, sir. Photosynthesis. आपका नाम बताइए, गुड नेम एंड विच क्लास यू स्टडीज? My name is Ephraim and I am studying in 7th standard. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट दिस वन? Yes, this is photosynthesis. Let me explain about the definition of photosynthesis. Photosynthesis is defined as photochemical reaction during which carbon dioxide and water utilized to give oxygen, glucose, and water in the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight and chlorophyll, here plants are autotrophic. Thank you. Now my friend Mavish Kalim will continue. Now I'm going to explain about photosynthesis. Photo means light, synthesis means absorption. So how plants utilize carbon dioxide which is released by animals and human beings. Plants help us to purify the air by releasing oxygen. Plants provide glucose. Plants also protect our environment and our Mother Earth from pollution. Thank you. अब लिए चलते हैं आपको जो साइंस ए ग्रेट मिक्सचर। व्हाट इज द इंडियन रिलीफ फीचर्स? ओके ओके, तो ये बताइए, विच क्लास यू स्टडीज, व्हाट्स योर नेम? Myself Saida Afshin from Junior 10. Myself Saida Maria Fatima from Junior 10. Myself is Mashreen. I am from Junior 10. Can you explain about this one? What is it? This is the model of Indian relief features. The relief division of our Indian landmass have divided into 6 major groups, that are the Himalayas, the Indo-Gangetic plains, the peninsular plateaus, the coastal plains, the desert, and the islands. So firstly, I want to make you know about the Himalayas. The Himalayas are located on the northern region of our country. Many perennial rivers like Indus, the Ganga, and the Brahmaputra originate from the Himalayas. The Himalayas extending from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. Himalayas consist of 3 ranges separated by deep valleys and plateaus, that are the Great Himalayas, the Lesser Himalayas, and the Shivaliks. The Great Himalayas are also known as the Himadri. The Lesser Himalayas are also known as Himachal Himalayas. These Himalayas are the northernmost continuous ranges in Himalayas. The Lesser Himalayas, What is this? The Bengal. we have Bengal. It is an island. It is stretched in the Bay of Bengal and in Andaman and Nicobar Islands. Narnakundam and Barren Islands are of volcanic origin. In southernmost tip of are found in Andaman and Nicobar Island have called Indira Gandhi Point, which was submerged during 2004 tsunami. Thank you. तो नाज़रीन, हम जो है निज़ाम कुतुब शाही के दौर में लिए चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे पोस्टर्स लगाए हुए हैं। तो हाल ही आप जैसा बरकत अली साहब जो इंतकाल कर गए हैं हाल ही में, तो उसके उन्होंने भी यहाँ पर मौजूद है। बरकत अली साहब भी जो है यहाँ पर मौजूद है, उनकी यहाँ पर फोटो लगाई है, उनके ताल्लुक से कुछ मालूमात करते हैं। चलिए बताइए, आप लोग पोस्टर्स लगाए हुए हैं, ये आसिफ जहां के ताल्लुक से बताइए। पहले अपना नाम बताइए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Myself, Sayyida Batul Fatima. I'm studying in 10th junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Shafia Sultan. I'm studying in junior 10. Okay. You have 30 seconds. Today I'm going to explain you about our Nizams of Hyderabad. We have 9 Nizams. And our first Nizam is Nizamul Mulk, as we all can. I'm talking of the Mukram Jai. Okay. We all know Mukram Shah. Okay. Mukram Shah is also known as Barkat Ali Khan Siddiqui. He was the feudal Nizam of Hyderabad between 1967 and 1971. He was the head of the house of Asaf Jah until his death in 2023. Mukram Jai, son of. He is the son of Usman Ali Khan. राइट, वेरी नाइस। बहुत अच्छा था जिन्होंने जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है निज़ाम के ताल्लुक से। ये भी ज़रूरी है, एक जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज के दोस्तों। यहाँ पर ये लड़की जो है काफ़ी मेहनत करके ये प्रोजेक्ट तैयार करी है जिसका नाम है मदीहा, जो है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। उसके ताल्लुक से कुछ मालूम करते हैं। मुझे अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा उनसे मालूम करने के लिए। काफ़ी ऊंचाई पे इन्हों है यहाँ पर, तो ऊपर चढ़ने के लिए बेटे हमारे ऊपर अल्लाह मेरी तौबा। हाँ भाई, तो ये बताइए कि जो है ये प्रोजेक्ट कैसा तैयार करे आप, कितना टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में और कौन सपोर्ट करे आपको? पहले अपना नाम बताइए, क्लास बताइए। सर, मेरा नाम मदीहा हुसैन है, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। ये प्रोजेक्ट रेडी करने में मुझे 1 वीक का टाइम लगा है और इसमें ये प्रोजेक्ट रेडी करने में मेरे पेरेंट्स और वली सर ने मेरी बहुत हेल्प किया है। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट रेडी हो पाया है। ये हुसैन सागर है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, जहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इन डैम्स की तरफ से ही आती है। इसीलिए हम लोगों ने ये हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट रेडी किया है ताकि हम लोग ये बता सके कि इलेक्ट्रिसिटी का रोल हमारी लाइफ में क्या है। हाँ, तो सर हम लोगों ने इसे बनाने के लिए टरबाइन का यूज़ किया है, डायनामो, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डायनामो रोटेट होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, क्योंकि जब डायनामो रोटेट हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ से वाटर पाइप्स रखे हैं, तब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना हॉर्स पावर आप बनाते हैं? सर हम लोगों ने इसमें आप कम से कम 18 वॉट के कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने इसे यूज़ करने के लिए जो टरबाइन यूज़ किया है वो 18 वॉट का है, और इसमें आप कम से कम ऐसी लाइट्स और कुछ आप घर के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ लेते हो 18 वॉट से बढ़ के, तो आप पूरे घर का इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये थे नाज़रीन, ये मदीहा जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो और यहाँ पर एक डेमो देखेंगे हम यहाँ पर कि जो है कैसा तैयार करें, उसके ताल्लुक से और मज़ीद मालूम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जो मशीन जो तैयार किया गया है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जैसा कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि जो है हम लोग सही मुझ में भी जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट पे ठहरे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पाइप लाइनिंग जा रही है, वाटर फॉल हो रहा है, यहाँ पर मैकेनिज्म जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनाई जा रही है। और जो है ऐसे बच्चों को हम जो है सलाम करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हैं। बेटे आपको मुबारक हो, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक। ठीक, वाटर प्यूरिफिकेशन यहाँ पर बच्चे तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है, आप नाम बताइए। Assalamualaikum. Myself Nazia Fatima. My friend's name is Shazia Nazreen and Sara Sultana. We are going to Nazia Fatima. Which class? 8th girls. Assalamualaikum. My name is Shazia Nazim. Myself Sara Sultana. Can you explain about this one? What is this? Assalamualaikum. Myself Nazia Fatima. My friend's name is Shazia Nazreen and Sara Sultana. We are going to explain process of water purification. In them we use different kinds of materials like paper glass, plastic pipe, big stones, small stones, sand, cotton. First glass take big stones, second glass take small stones. Now my friend Shazia will continue. Assalamualaikum. Myself Shazia Nazim. Assalamualaikum. Myself Shazia Nazim. In third glass take sand, and fourth glass take cotton. Now in each glass should be connected with plastic to it.
Now slowly come to first glass to second glass to third glass to fourth glass. Now Sarah will continue. Assalamu alaikum. Myself Sarah Sultana. As water passes from four different glasses, it gets purified in the 3 centimeter way. The Mother Earth will purify fresh for pure water the ground. Thank you. ये थे वाटर प्योरिफिकेशन से। उसके बाद में आ जाएंगे अब हम यहाँ पर वाटर साइकिल यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए हैं। क्या चीज़ होता है वाटर साइकिल, उसके ताल्लुक से कोई मालूमात करते हैं। यहाँ पर 3 लड़कियां मेरे से यहाँ पर मासूम की बच्चियां यहाँ पर लड़कियां ठहरे हुए। बेटा अपना नाम और अपना क्लास बताइए। Assalamu alaikum. Myself Mahmuda Sultana from 6th standard. Assalamu alaikum. Myself Aisha Maki from 6th standard. Assalamu alaikum. Myself Madima Begum. I am studying in 6th standard. Okay, can you explain about this one? Water cycle, who is it? Water cycle heat from the evaporates water to form water vapor. This process is called evaporation. Plant also lose water as water vapor. This is called transpiration. Now my friend will continue. Okay, right. Thank you very much. तो आप लिए चलते हैं और भी दूसरी जगह के यहाँ पर जो रोड्स तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। उसके ताल्लुक से कुछ मालूमात करते हैं कि जो है कौन सी क्लास में है बेटे आप लोग? 7th. 7th क्लास। नाम? Huneza Khan. Rahim Nisa Peri. Nimra Fatima. Sumaira Fatima. Okay, can you explain about this one? Only 30 seconds. Who is the explanation? You and you. Who? Okay. Come on, tell me. Air travel is one of the most common and important is known as the air travel is one of the most common and important form of transport in our day-to-day lives with over 7 billion passengers expert to flying. The industry's importance is not growing very much. The problem caused by high demand, business and pressure, many new technologies, then improves safety and efficiency of air travel. ओके, ये रूट्स दिया गया। पार्किंग है, रिडल है, सिग्नल से, रोड से, पार्क से, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसके ताल्लुक से और मालूमात करते हैं। बेटे ये बताइए आप, ये प्रोजेक्ट के हैं? रेलवे ये क्या चीज़ है? दिस इज ट्रेन से, स्टोन से, लवली। स्टोन से रेलवे, ये पार्किंग है यहाँ पे, कार से, रोड से, सिग्नल है, ये पार्क है। पार्किंग है, पार्क, ये दिस इज पार्किंग। हाँ, ये पार्क, गार्डन। ओके, दिस इज पार्किंग, दिस इज रोड, दिस इज हाउसेस, दिस इज सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड कलर? रेड कलर, दिस इज स्टॉप, रेड कलर स्टॉप। येलो से स्लोली, ग्रीन जाइए, ग्रीन गो। नाइस। ओके, वेरी गुड। काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है प्रोजेक्ट को तैयार करा, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए। उसके आगे आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी तजुर्बा दिए हुए हैं लड़के ने, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो इसी के साथ आपको लिए चलते हैं तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में। आपको ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम बताते रहेगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मैं सुफियान अहमद खान, करस्पॉन्डेंट न्यू मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ। आज हमारे पास साइंस एग्जीबिशन मुनक़्क़िद किया है हर साल की तरह। न्यू मॉडर्न हाई स्कूल पिछले 38 ईयर्स से सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है, फॉर्म के लिए काम कर रहा है। और इसके फाउंडर है जनाब निसार अहमद खान साहब मरहूम, जिसका इंतकाल 28 जुलाई 2020 में हो चुका है और वो अपने रब के पास वापस चले गए हैं। निसार अहमद खान साहब के बाद उनकी अहलिया मिस ताहिरा नैयर की लीडरशिप में ये स्कूल चल रहा है और मैं उनका बेटा हूँ। और यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन मुनक़्क़िद किया है जिसमें तकरीबन 30 प्रोजेक्ट्स है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स है। और उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में, जैसा प्लांट्स की ग़िज़ा कैसी रहती है उसके बारे में दिया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और दिल का जैसा हार्ट कैसा काम करता है, हार्ट पंपिंग के बारे में, कुतुब मीनार, पेपर मिल इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है। और
मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि पेरेंट्स ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपने बच्चों को भी मोटिवेट किया है, और स्टूडेंट्स भी मैं देखा हूँ कि बहुत से माशाल्लाह बहुत आगे आगे आए हैं इस प्रोजेक्ट्स के लिए। अपनी खुदी से वो लोग रिसर्च किए हैं टीचर्स के लिए गाइडेंस में, और दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए हैं। और आज के मेहमान खुसूसी है मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग, कॉरपोरेटर रियासत नगर, और एसीपी संतोष नगर मोहम्मद वाव साहब, मोहम्मद ख्वाजा अली शोएब करस्पॉन्डेंट मास्टरमाइंड्स हाई स्कूल, इकबाल साहब टीएसटीयू प्रेसिडेंट, एंड सलाउद्दीन साहब मुनव्वर साहब। सलाउद्दीन साहब जो है मैनेजमेंट करस्पॉन्डेंट ऑफ सलाउद्दीन हाई स्कूल है, और मुनव्वर साहब गवर्नमेंट हेडमास्टर है। हाँ, और माशाल्लाह ये न्यू मॉडर्न हाई स्कूल जो है 38 ईयर से अपना काम अंजाम दे रहा है इस एरिया में, और 38 ईयर से अंजाम दे रहा है। और ये न्यू मॉडर्न हाई स्कूल जो है रियासत नगर में है, जो कि हैदराबाद का एक एरिया है। और जो भी पेरेंट्स चीफ गेस्ट यहाँ पर विज़िट किए हैं, माशाल्लाह बहुत तारीफ़ किए हैं, बहुत मुतासिर हुए हैं आज के इस साइंस एग्जीबिशन से। तो मैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने विज़िट किया है हमारा साइंस एग्जीबिशन और अप्रिशिएट किया है। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत हिम्मत अफजाई हुई है। जज़ाकल्लाह। Very glad to be a part of this science exhibition, and it's very nice that the modern school has encouraged the children in this type of activities, and this is very good. And all the children, they are participating with enthusiasm, and they are learning something, and it's very nice. And I wish all the best to the management and students. Thank you. My name is K. Ram Mohan, Deputy Inspector of Schools, Bandaguda 1. Just I came for this program, and it's very nice and encouraging for the children. Okay, thank you. हाई स्कूल जो तकरीबन 39 साल से रियासत नगर में बड़ी कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय कर रहा है। आज मैं कहने पर मजबूर हूँ कि मरहूम निसार भाई साहब जो अपनी जवानी नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए निछावर कर चुके, और हालिया कोविड के दौरान उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद उनकी अहलिया और फर्जंद जो बेहतरीन तरीके से अपने वालिद साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। और जिस तरीके से बच्चों की तालीमी बेहतरी के साथ साथ उनके लिए तमाम वो मौक़े जो मुस्तक़बिल में उनको ज़रूरत है, जैसे आज साइंस एग्जीबिशन रखी गई है, बच्चों के जहन साजी और उनके अपने बनाए हुए और उनकी अपनी सोच को सामने रखकर जो आज माहौल पर अपनी गिरफ्त को रखने के लिए खेल कूद से लेके हर मैदान में, यानी मुस्तक़बिल में जो बच्चों को तालीम के साथ साथ जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी भी बेहतर तरबियत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निसार भाई की अहलिया खुसूसी तौर पर बच्चों की अखलाकी तरबियत पर नज़र रखते हैं, क्योंकि तालीम तो कोई भी दिलवा देता है, लेकिन अखलाक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो इस बात का सबूत है कि 39 साल के दौरान कोई ऐसा स्कूल में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया कि पेरेंट्स को कोई शिकायत हो या बच्चों ने कोई बदअखलाक़ी की हो। तो ये अखलाकी तालीम देने का नतीजा है कि आज स्कूल बेहतरीन तरीके से कामयाबी के साथ, हालांकि लॉकडाउन में पूरे हिंदुस्तान में तालीम मुतासिर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये साबित कदमी के साथ बच्चों के मुस्तक़बिल को नुकसान पहुंचाए बगैर उनकी तालीम को जारी रखने में बहुत अहम रोल अदा किया है इन लोगों ने, जो काबिल मुबारकबाद है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से बच्चों की बेहतर तरीके से तालीम तरबियत के साथ
अखलाकी तालीम और उनकी नशोनुमा और उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जहाँ जहाँ भी बच्चों की हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है वो इंतज़ामिया उनकी हिम्मत अफजाई कर रहा है। मैं भी जहाँ भी ज़रूरत है मैं यहाँ आता हूँ और मैं आज सिर्फ यही कहूँगा कि निसार भाई के हक़ में परवरदिगार उनकी कब्र को नूर से भर दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, क्योंकि आज सबसे बड़ा मसला उम्मत मुस्लिमा में तालीम का है और तालीम के लिए जो उन्होंने काम किया वो काबिल मुबारकबाद। मैं इंतज़ामिया का बेहद ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे आज इस साइंस एग्जीबिशन में होनहार बच्चों के बनाए हुए और उसके ऊपर उनकी जो गिरफ्त है और उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो काबिल मुबारकबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिरा नैयर है, प्रिंसिपल ऑफ न्यू मॉडर्न हाई स्कूल, और ये स्कूल 1983 में इस्टेब्लिश किया गया है और यहाँ का बहुत ही क़दीम स्कूल है, क़दीम इदारा है जो बहुत ही कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और हमारा मकसद जो है स्कूल को चलाने का, अपने कौम के जो तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, उनको अच्छी से अच्छी तालीम कम से कम फीस में देने का ये मकसद रख के चलते हैं। यहाँ के जो फाउंडर थे जनाब निसार अहमद खान साहब बहुत ही कौमी हमदर्दी का जज्बा रखते थे, कौम की खिदमत के लिए हमेशा कोशा रहते थे, बच्चों की बहुत फिक्र किया करते थे कि अपनी कौम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो इसी मकसद के लिए मैं और मेरे साहबजादे सुफियान अहमद खान हम लोग आगे बढ़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस बात पर कोशा रहेंगे कि हमेशा हम बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दे सकें और अच्छे से अच्छे अपने मुस्तकबिल में बहुत ही ऊंचे पैमाने पर वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसी तालीम की हम फराहमी करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो हर फील्ड में अच्छे तरीके से आगे जा सकें। हमारा ये मकसद है इंशाअल्लाह ताला। आप पेरेंट्स का भी बहुत साथ रहा है इन तमाम सालों में, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ये बहुत ही क़दीम मदरसा है, क़दीम स्कूल है और आप लोग हमेशा साथ देते आए हैं और इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि आप लोग आइंदा भी हमारा साथ देंगे। साइंस एग्जीबिशन के अलावा और क्या एक्टिविटीज होते हैं आपके पास? यहाँ पर देखिए साइंस एग्जीबिशन के अलावा कई चीज़ें होती हैं, जैसा कि स्पेल भी होता है और ऐसे राइटिंग, एलोकेशन, कराटे क्लासेस और कई चीज़ें होते हैं जो बच्चों को फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट के लिए हम हमेशा हर साल कराते हैं बच्चों को। जैसा कि आप बता रहे हैं कदीम स्कूल है, तो कदीम स्कूल में और क्या क्या स्पेशलिटी क्या है यहाँ की? स्पेशलिटी देखिए, यहाँ पर बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत होता है और टीचर्स जो है बहुत ही एक माँ की तरह एक मोहब्बत देते हुए बच्चों को, जो मतलब कमज़ोर रहते हैं और बिल्कुल समझिए एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं बच्चे, जिनके घर का माहौल हो सकता है कि कुछ अलग सा हो जिसमें वो लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, तो वो लोग को भी टीचर्स उनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली का बैकग्राउंड है, वो भी मालूम करते हुए उनको किस तरीके से आगे ले जाना है, किस तरीके से उनकी सलाहियतों को उभारना है और लेकर चलना है, ये सब चीज़ करते हैं। सबसे बड़ी स्पेशलिटी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करना है।